مجھے یاد ہے جب زینب کا واقعہ ہوا تو دل کی حالت یہ تھی کہ میرے کسی شاعر نے کہا تھا وے بلے آج مر گیا تو، وے بلیا آج مر گیا تو، تیرے در تے نہ وجن ٹول، تیرے شہر قصور دے شمرا نے ایک زینب دتی رول. تو مجھے بڑا دکھ تھا. مجھے یاد ہے میں لاہور سے آیا تو اسپیشلی میری ٹاسک تھا، میری اسائنمنٹ تھی کہ میں نے اس ایشو کو رپورٹ کرنا ہے، اس ایشو کو میرا. لیکن حالت یہ تھی کہ مجھ سے نہ تو زبان لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی اور نہ لفظ زبان کا ساتھ دے رہے تھے. بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ آج پھر ایک واقعہ ہوا لیکن وہ واقعے میں سچائی نہیں ہے. لوگوں نے اس اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو، اپنی حرمت کو پامال سر بازار لا کے نہ صرف لوگوں کا وہ کھانا خراب کرتے ہیں بلکہ خود کا، اپنے بچوں کا بھی کر رہے ہیں. تو ہم یہی بات کرنے جا رہے تھے. ہم واپس چلتے ہیں جناب امین انصاری صاحب کی طرف. امین انصاری صاحب سے بات یہ چلی تھی ہمارے پاکستان کی کوئی بھی آج تک ہم نے سوچا تھا، ہم نے شاید لگ رہا تھا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا کہ گورنمنٹ کوئی نہ کوئی قانون سازی کرے گی اور بچوں کے چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے اسپیشلی کوئی نہ کوئی بل ایسا ضرور سینٹ سے یا مقننہ منظور ضرور کر لے گی کہ جس میں ہماری آنے والی نسلوں کا تحفظ ہو سکے. لیکن ایسا ہمیں نظر نہیں آیا. امین صاحب کیوں ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان میں قانون سازی نہیں ہو سکتی اس کے لیے؟ میں تھوڑا سا آپ سے اس پر آپ کو کلیریفیکیشن کرتا ہوں. زینب الرٹ ایکٹ ہے نا جو زارا کے نام سے تھا، وہ بل باقاعدہ 2020 مارچ میں پاس ہو چکا ہے اور مارچ میں صدر پاکستان کے سائن ہونے کے بعد وہ قانون بن چکا ہے. زارا نام سے، زینب الرٹ ریکوری ایجنسی کے نام سے یہ قانون بچوں کے تحفظ کے لیے، باقاعدہ ان کے حقوق کے لیے، پروٹیکشن کے لیے پاس ہو چکا، بن چکا قانون. زینب الرٹ ایپ آ چکی ہے جس میں انہوں نے سر دست مطلب یہ موجودہ گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی شیری مزاری صاحب پر اور انہوں نے وہاں اسلام آباد مجھے اسپیشل انوائٹ کیا اور زینب الرٹ ایپ جو ہے نا وہ اس کا وزیر اعظم کے سٹیزن پورٹل پر مجھ سے انہوں نے افتتاح کروایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس علاقے میں جہاں کوئی بچہ کو گم ہوتا ہے یا لاپتہ ہوتا ہے نا تو ہماری ایک سماجی معاشری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے نا اس کو بچے کو مطلب بحفاظت بازیاب کرانے کے لیے ایز سون ایز جلدی سے جلدی اس ایپ پر اس کا نام پتہ وغیرہ جو ڈیٹیل مہیا اس پر ڈال دیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ متعلقہ ڈی پی او اور اس کا ایس ایچ او وہ فوری طور پر خبر ان تک جائے گی اور وہ اس پر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکشن لیں گی اور انہوں نے کہا ہے کہ 2 گھنٹے میں اگر ایس ایچ او ایف آئی آر درج کر کے اس پر کوئی رپلائی نہیں دے گا اس ایس ایچ او کے خلاف کارروائی ہوگی. اس میں ایس ایچ او کو 1 سال تک عمر قید ہے اور ساتھ 2 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی ہے ایس ایچ او کو اگر اس پر وہ کوئی رپلائی نہیں دیتا. جی ناظرین جیسے آپ سن رہے ہیں ان کی بات حاجی امین صاحب بتا رہے ہیں کہ زینب الرٹ ایپ میں اگر آپ اس پورٹل پہ اپنی انفارمیشن ڈالتے ہیں اور ودن 2 آورس اگر اس پہ ایکشن نہیں لیا جاتا تو اس ایس ایچ او کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. اور لیکن بات یہ تھی ہمارے اویئرنیس کی ہمارے یہاں بہت کمی ہے. ہمیں آج تک یہی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا حق کیا ہے. ہمارا المیہ سب سے بڑا یہی ہے. جی اور زینب الرٹ ایکٹ کے تحت پچھلے چند ماہ پیچھے ہم قصور سے باقاعدہ اس کی پولیس قصور پولیس کی ٹریننگ کا آغاز بھی کیا ہے. یہاں پر باقاعدہ سیشن ہوا ہے قصور پولیس کی ٹریننگ اور زینب الرٹ ایکٹ کے مطلب اس میں جو بھی اس کے قواعد و ضوابط جو نئی چیزیں ایڈ کی ہیں بچوں کے تحفظ کے لیے اور زینب الرٹ ایپ بھی اور متعلقہ جو ہمارے ڈی پی او صاحب بھی ادھر موجود تھے انہوں نے مختلف ضلع کے ایس ایچ او وغیرہ بلائے ہوئے تھے تاکہ ان ساری ٹریننگ ان کی ہو وہ آگے آپ اپنے اے ایس آئی وغیرہ جو یا ایس آئی ان کو باقاعدہ اس پر اویئرنیس دیں کہ یہ ہماری ذمہ داری مطلب اس میں یہ اضافہ ہو گیا ہے خصوصاً بچوں کے تحفظ کے لیے جو ہے نا ان کو بر وقت ریکور کرنے کے لیے ہم اس پر کوئک رسپانس دیں اس قانون کے تحت. یہ انیشل سٹیج بعد مطلب کہہ لو بنیادی طور پر اس کا جو زینب الرٹ ایکٹ جو بنا اس کا یہ وزیر اعظم کی جو سٹیزن پورٹل پر جو افتتاح ہے یہ اس کا ایک آغاز ہے. باقی پراپر ہے کہ صوبوں میں اور مرکز میں اس کی اتھارٹی کا قیام جو ابھی تک عمل میں نہیں لایا جا سکا وہ وہاں پر ہماری بات بھی ہوئی ہے صدمت صاحب سے اور بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی فنانس کا ایشو آ رہا ہے ایف ڈی فنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے لیکن ہماری تو یہ ہمارے گورنمنٹ سے ایک اپیل ہے گزارش ہے کہ پاکستان میں جس طرح یہ کم سے معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی بدفعلی کے واقعات کا نسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں تو ان کے تدارک کے لیے جلد از جلد جو ہے نا یہ زارا نام کی اتھارٹی اس کا قیام عمل میں لایا جائے اسلام آباد میں اور صوبوں میں بھی چونکہ جب
कौमी असम्बली में ये बिल पास हुआ, कानून पास हुआ, उन्होंने साथ ही ये वजाहत कर दी थी कि ये सूबों पर भी इम्प्लीमेंट है। इस पर यह है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को अलहदा से और इसको पास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ कि असल में हो ये रहा है हमारे माशरे के साथ कि हमने जो चीज़ें हैं या मामलात हैं उसमें इतना पेचीदा या मुश्किल बना दिया है। हालांकि इस्लाम ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। हमारा दीन बड़ा आसान था, उसको ज़िंदगी में नाफज करना बड़ा आसान था। अगर हम उसको नाफज कर लेते तो ये सारी कबाहतों से वैसे ही बचा जा सकता था। लेकिन हमारा चूँकि हम दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, इसलिए हमारे मामलात, जैसे अभी अब बात कर रहे थे कि यार बच्चियाँ अब घरों में महफूज नहीं हैं, अपने रिश्तेदारों से महफूज नहीं हैं, तो हमें ज़हनी नहज, हमारी हालत सही, अगर मुआशरे की हम बात करें तो इस हालत हमारी ये पहुँच चुकी है, हम दरिंदे बन चुके हैं। हम दरिंदे बन चुके हैं, ये दरिंदों का मुआशरा बन चुका है। इसके लिए कोई ना कोई एक ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमारे मुआशरे को तब्दील कर सके, हमारे रवैयों को बदल सके, हमारी ज़िंदगियों को बदल सके। इसकी हमें बड़ी अशद ज़रूरत है, जो मुझे नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। बिल्कुल एक प्रॉपर, मैं समझता हूँ उस पर एक अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आज हमारा सबसे पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो भी बच्चों की तरबियत के हवाले से गफलत का शिकार हैं। उसके बाद हमारे जो तालीमी इदारे हैं वहाँ पर भी तरबियत का अंसर ख़त्म हो गया है। उसकी वजह है कि किताबों की जो ना बंडल वो इतना ज़्यादा उनको बोझ डाल दिया गया है कि बच्चे पढ़ सरत तालीम में की तरबियत ख़त्म हो गई है। हाँ जी, जापान में जब बच्चे को वो तालीमी स्कूल में लेके जाते हैं ना, पहले 6 साल वहाँ पर बच्चों की तरबियत है, बुनियादी अखलाक सिखाया जाता है। हाँ जी, उसको बुनियादी यही चीज़ें सिखाई जाती हैं, अखलाकियात, ईमानदारी। और ये देख लें, ईमानदारी में जापान दुनिया में सरफहरिस्त है। तो इस तरह ये हमारी नस्ल को एक अच्छी तरबियत की, अच्छी नस्ल की, ये इस नस्ल को अच्छी तरबियत की ज़रूरत है। तब जाके कोई टाइम लगेगा 5-10 साल, तो ये चीज़ें बिल्कुल ख़त्म की जाती। आखिरी सवाल के साथ मैं करीमी साहब की तरफ चलता हूँ। करीमी साहब, वाक़े को अपने वाइड अप करना है, इसको क्लोज अप अपने देना है कि आपने मुझे ये बताना है कि जो भी रिसेंट वाक़या बसरपुरा का हुआ है, उसकी आपकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन क्या, और पुलिस को आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो जी अमीन अंसारी साहब ने जितनी भी बातें की हैं, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस हद तक कि जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए, मजलूम को जालिम ना बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये वाक़यात जो हमारे कसूर में ही नहीं हो रहे, ये पूरी दुनिया में होते हैं। हमारे कसूर को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? हमारे कसूर में अगर कुछ भी इस तरह का वाक़या, कुछ छोटा मोटा कोई जाली पर्चा भी हो जाता है तो कसूर हो जाती है। कसूर को खुदारा माफ़ कर दें, कसूर को छोड़ दें। किसी दौर में जब बुल्ले शाह का शहर गिरा, बाबा बुल्ले शाह के नाम से जाना जाता था। आज हमें कसूर में जब हमें इमरान भाई, जब हम बाहर जाते थे तो हम जब भी किसी भी सूबे में जाते थे, किसी भी ज़िला में जाते थे, हम जाके वहाँ पे बताते थे कि हम बुल्ले शाह की नगरी से आए हैं। हमारे हाथ चूमते थे, हमें बिठाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती थी। अब हम शर्मिंदगी की वजह से कहीं नाम नहीं ले सकते। हम कहीं किसी को कहते हैं कि हम कसूर से आए हैं तो वो हकारत की नज़र से देखता है। पहले तो गुजारिश मैं ये करूंगा कि हमारे कसूर को माफ़ कर दिया जाए। मैंने इससे कबल भी सहाफ़ती जितने हमारे दोस्त हैं, मैंने तमाम अपने प्रेस क्लब में भी बेशुमार दफ़ा मीटिंग्स हुई, तमाम सहाफ़ियों से मैंने गुजारिश की और उन सब ने मेरी बात से इत्तफाक किया। जितने कसूर के सीनियर मोस्ट सहाफ़ी हैं जो बाकायदा कौमी और नेशनल अखबारात, नेशनल TV चैनल से वाबस्ता हैं, उन्होंने ये इस बात से इत्तफाक किया कि आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ अगर कोई ऐसा वाक़या कोई बच्ची का या बच्चे का पेश आ जाता है तो हमें चाहिए कि हम उसकी तहकीकात कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद उसको मंजर-ए-आम पर लाएं। पहली तो गुजारिश मैं ये करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये जो बसरपुरा का वाक़या आप बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि बसरपुरा में भी एक साजिश की गई है। जो मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये है कि डॉक्टर देखें, जिस डॉक्टर ने मेडिकल किया वो खतून है, अल्लाह को उसने भी हिसाब देना है, जवाब देना है। यहाँ पे ये भी मेरे सुनने में आ रहा है जी कि वो मुलजिम का जो बाप है उसने 2 लाख रुपए दे के या 2.5 लाख रुपए दे के तो रिपोर्ट तब्दील करवा ली है। मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता और मैं यकीनन, मुझे कभी यकीन है कि अमीन अंसारी साहब भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि बिल्कुल डॉक्टर इस तरह की एक बच्ची के, मासूम बच्ची के साथ ज्यादती हुई हो तो उसकी रिपोर्ट को तब्दील करेगी। बिल्कुल रिपोर्ट तब्दील नहीं हुई।
उस रिपोर्ट को मैंने जब मुलाजा किया, मैंने जब पढ़ा उस रिपोर्ट में, तो बिल्कुल 1% भी उसमें डॉक्टर ने नहीं लिखा कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। बच्ची को ज्यादती के इल्ज़ाम में वो बच्चे को पकड़ लिया गया, इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान का ये भी कहा जा रहा है कि इमरान बड़ा क्रिमिनल इंसान है, वो मर्डर से वो बाहर आया था। वो मर्डर भी मैंने तहकीक की है, वो मर्डर भी उसने नहीं किया था। वो मर्डर जिसने किया था वो तो बाइज्जत बरी हो गए थे। ये बेचारा नजायज सजा पा के आया है, पता नहीं किस जुर्म की पाई है सजा उस इंसान ने, बिल्कुल मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो भसरपुरे वाला वाकया है, इस वाकया में बिल्कुल उसका कोई किरदार मुझे नजर नहीं आता। मजीद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस के साथ साथ हॉस्पिटल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी मैं ये कोशिश करूंगा और मैं ये आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये जो मुलजिम का जो वालिद है, जिसको बार बार ये बहुत बड़ा ताजर, बहुत बड़ा सरमायादार, बहुत बड़ा बाअसर कहा जा रहा है, वो भी एक गरीब आदमी है। मुझे पता है, वो मैंने खुद अपनी आंखों से उस इंसान को 600 रुपये दिहाड़ी करते हुए देखा हुआ है, और मैंने उसको खुद को देखा हुआ है सड़कें साफ करते हुए। तो वो अब उसके किसी अपने उसके बेटे के होटल पे जाके वो मजदूरी करता है, तो वो कहा जा रहा है जी वो सरमायादार है, वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने पैसे दे के ये कर दिया वो कर दिया। कसूर में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हॉस्पिटल में कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे आप जाके चेक कर लें। दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो मसीहा का किरदार अदा करते हैं। वो ये नहीं कि वो किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है तो उसकी ज्यादती को बदल दें, ऐसा नहीं होता। पिछले दिनों एक मेरी नज़र से गुजरा एक केस, उसमें 2.5 माह का या 3 माह का भी कुछ बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, वो आ गया था। तो ये तो रिसेंटली उन्होंने कहा जी ये 5 से 10 मिनट या आधे घंटे के बाद ये हॉस्पिटल में ले गए हैं बच्ची को, तो आधे घंटे में ये खून में लतमत जो बच्ची थी वो कैसे ठीक हो गई? कोई उसको खून के वो नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये जुल्म नहीं हुआ, इसको जुल्म ना बनाया जाए, इसको जालिम ना बनाया जाए। इस तरह हम लोग टीवी पे बैठ के मुख्तलिफ अखबारात में खबरें लगा के एक मजलूम को जालिम बना देते हैं। जी नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद है जनाब रियाज राजा साहब, राजा होटल के मालिक, जिनके बच्चे के इल्ज़ाम है कि उन्होंने बच्ची के साथ 12 साल या 9 साल बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की है, जिसको मेडिकल की रिपोर्ट जो है जो उस वक्त हमारे सामने मौजूद है, उसमें कहा जा रहा है कि डॉक्टर का बयान ये है कि बच्ची के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं की। मैं आपको बता रहा था नाज़रीन, पहले भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है जो हमें मौसूल हो चुकी है, जब बच्ची जो गली से निकल रही है, घर से अपने निकल रही है, मुलजिम के घर से निकल के अपने घर की तरफ किस तरह टकेलियाँ करती हुई जा रही, वो फुटेज भी हम आपको दिखा चुके हैं। राजा होटल के मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है, इनके बेटा क्या जुर्म इसने किया है, या पहले भी कहा जा रहा है कि बच्चा पहले भी किसी कत्ल के मुकदमे में मुलव्वस रह चुका है, तो अपनी औलाद से बेहतर कोई भी नहीं जान सकता किसी चीज़ को। तो राजा सबसे जानते हैं कि इनके बेटा किस हद तक जुर्म समझ के उसने किया। सब तो पहले जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 302 ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਮੁਲੱਵਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਵੀ ਕਤਲ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸਤੀ ਵਿਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗਾਉਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝ ਲਵੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਤਫਸੀਲਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦੇਖੋ ਖੁਦ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਗਲੀ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੀ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 2 3 4 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਮੁਖਾਲਫਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਟਾਇਰ ਸਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਸਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। जी जीमीन साहब तुसी की कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखें मैं तो समझता हूँ अगर मेडिकल रिपोर्ट में वो उन्होंने मतलब उसको क्लियर किया है तो अब आ गया है DNA की फॉरेंसिक रिपोर्ट। तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट ना वो ऐसी है कि जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता। तो वो वहाँ पर आगे सारी सूरत हाल जो है ना वो बिल्कुल सामने आ जाएगी कि इसमें अगर कोई गुनाहगार है या कि ये एक मतलब कि खुद एक कह लें भी इसको क्रिएट मतलब कहते हैं ना खुद साख्ता एक वाक़या बनाया गया है। फिर सारी ये सूरत हाल वहाँ पर खुल के सामने आ जाएगी। और मैं यही कहूँगा कि अगर वो मुलज़िम है उसके बाप से कुछ सवाल करना चाहेंगे? देखें सवाल वो तो मतलब अपनी उस पर पूरी एक किस्म की अल्फिया बयान दे रहे हैं कि मेरा बच्चा बेगना है और इसमें हमें कोई लागतबाजी की वजह से फंसाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वहाँ पर आगे सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और मैं बल्कि ये भी किसी को इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि आप अगर खुदा ना खासा, मैं नहीं कहता ऐसा हो, बल्कि अल्लाह करे ऐसा ना हो कि आप अपनी बच्ची की ज़िंदगी को दाव पर लगाएं और इस तरह का झूठा जो वाक़या अगर है तो बनाया तो ये मतलब ये चीज़ें बिल्कुल नामनासिब हैं। इवन के ये इंतहा पसंदी का अंसर पाया जाता है कि बंदा इस हद तक चला जाता है कि एक झूठा वाक़या बना गया अपनी बच्ची का कि उसके साथ ये ज़्यादती हुई है। यहाँ तक तो ये चीज़ें मतलब ये भी हमारे माशरे में ना चीज़ें नाकाबिल बर्दाश्त हैं। पहले ही मतलब इस तरह के वाक़यात बहुत हो रहे हैं। हर जी शऊर आदमी परेशान है कि हमारे जो बच्चे डेवलप हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, आए रोज़ाना टीवी पर जो इस तरह के बार बार वाक़या देख रहे हैं, इसका बच्चों के साथ जो ना दिन पर क्या असर पड़ा है। उसके अलावा जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये भी बहुत बड़ी वजह है। इस तरह के जो जराइम हैं जो मतलब ज़्यादा बढ़े हैं, इसमें भी काफ़ी मतलब को मैं समझता हूँ लिमिटेशन होनी चाहिए हमारे मोबाइल में। बाद जो ऐसी वेबसाइट है वो बंद होनी चाहिए। गवर्नमेंट के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे चैनल ऐसी फौज किस्म की वेबसाइट वो बंद कर दी जाए तो उससे भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिल सकती है इसके वाक़यात कंट्रोल करने के लिए। उसके अलावा जो डार्क वेब है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की जो साइट है, उनको भी बैन किया जाना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे काफ़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। क्योंकि बाद लोगों का जो है ना ज़रिया माश है, यही बड़ा घनौना ज़रिया माश है। वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ज़रिए पैसे कमाते हैं, बच्चों को वहाँ कर लाइव दिखाते हैं, कत्ल करते हैं, ज़्यादती भी। तो अगर ये वेबसाइट बंद हो जाए तो उसकी वजह से भी हमारे काफ़ी हद तक बच्चे महफूज हो जाएंगे। जी मैं वापस चलता हूँ राजा साहब की तरफ। राजा साहब, आपके बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ चैनल्स दावा कर रहे हैं कि उसने इतराफ़ है, जुर्म कर लिया है। जी नहीं, इस तरह करो, तुसी कोई भी पहलवान आदमी तुसी 2 घंटे वास्ते पुलिस के हवाले कर दो, 2 घंटे बाद वो कहेगा कि बेनज़ीर नूं मैंने कतल किया है, भट्टो नूं मैंने कतल किया है। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। आपकी बात को बिल्कुल आपने सही कहा कि मजलूम को मजलूम रहने दीजिए। ज़ालिम जो है वो ज़ालिम होता है और ज़ालिम को कभी भी किसी भी तरह से रायत नहीं मिलनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ इस
یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہمارا کل بہت اچھا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.